السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی امجد صاحب امجدی خیریت سے ہیں؟ جی خدا کا فضل ہے، دعائیں ہیں آپ دونوں۔ حضرت کہاں ہیں ابھی؟ یہیں سیتامڑھی میں ہیں۔ اچھا حضرت، یہ مسئلہ بڑا عفان پر چل رہا ہے جی کہ بریلی والے علماء بریلی مان رہے ہیں کہ 90 سال سے نماز نہیں ہو رہی مکہ شریف مدینہ شریف میں۔ جی یہ مان رہے ہیں بریلی والے علماء کہ 90 سال سے نہ اذان ہو رہی نہ نماز ہو رہی مکہ شریف مدینہ شریف میں۔ جی جی یہ ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اچھا، ارے واہ، یہ تو نئی بات آپ سے معلوم ہوئی۔ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ فرمائے، تھوڑا تشریح کریں۔ اگر جو ہے غیر مسلم اگر جانور ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں اسے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ کون کرتا ہے؟ ہاں کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کون کرتا ہے ذبح؟ غیر مسلم کہاں کرتے ہیں؟ غیر مسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا وہابیہ دیابنا جو ہے، ہم نے آپ کو ایک مثال پیش کیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت اونچے درجے کی مثال، واہ واہ۔ وہابیہ دیابنا جو ہے ان کے عقائد فاسد ہیں۔ ارے واہ، کیا بات ہے، فاسد ہے نا؟ ان کے جو عقائد ہیں، جو اعتقادات ہیں، کیا اعتقادات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی والی جو عبارتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھو، گستاخی تو کوئی بھی کرے وہ تو کافر ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، دیوبند والوں کے نزدیک بھی بریلی والوں کے نزدیک بھی۔ جی جی۔ اب گستاخی، جیسے کہ اب ایک گستاخی یہ ہوتی ہے کہ کسی سے جو ہے نہ خواہی ہے کہ نہیں، وہ جو ہے نا غلطی سرزد ہوئی، اس نے اسے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، ہے کہ نہیں؟ تو اس کی تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور جب کوئی غلطی بھی کرے اور کتابیں شائع بھی کرے، چھاپے بھی چھپائے نہیں، ہے کہ نہیں، یہ رجوع بھی نہ کریں، جیسے حدیث ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب 50,000 عالم پوری دنیا کا کم بیش جمع ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، امام مسجد نبوی کے پیچھے، تو ان کو کیسے گمراہ مانا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کا ایک سے بڑا ایک عالم آپ نے جو ہے نا ابھی کے وقت کو جو ہے آپ نے بس دیکھ کر کہ 50,000 جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں، آپ اس کے اعتبار سے اس کی جہت سے کر رہے ہیں، مگر جب آپ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، سب جمع ہو کر نماز پڑھ رہا ہے ایک ساتھ۔ دیکھیے، سواد اعظم بھی ہے اور 73 فرقے بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اور دوسری حدیث نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث کو بیان نہیں کرتے، 72 فرقے والی بس ایک ہی حدیث ہے۔ سنیے بات کو یہاں احناف کے نزدیک اس حدیث کے مطابق جو ہے کفر نہیں ہوگا، پتہ ہے نا آپ کو؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ گناہ والا کام کر رہا ہے، وہ نماز ترک کر رہا ہے، فرض کو یعنی چھوڑ رہا ہے، حدیث میں تو گناہگار ہوگا۔ حدیث میں تو فقط کفر ہے، جیسے آپ 72 فرقے والا مطلب مراد لیتے ہو، تو اس حدیث میں مطلب الگ کیوں مراد لے رہا ہو؟ اگر آپ فقط کفر حدیث میں حضور نے فرمایا، یہی تو کہا گیا ہے، سنیے بات کو یہاں، یہی تو کہا گیا ہے وہاں پر 72 فرقوں والی حدیث میں ایک ہی مطلب تو بھائی آپ سنیے نا، ندوی اہل حدیث مودودی۔ حضرت یہاں سن لیجیے، یہ 4 مسائل کیوں وجود میں آئے؟ انہی حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی عبارت کی والی جو حدیث ہے اس کا مطلب تفسیر جو ہے صحیح سے کہ سب مسلمان ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر جو ہے کیوں بیان جو ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ حدیث کی توضیحات کیوں ہوتی ہے، خبر ہے آپ کو؟ تقلید کیوں کرتے ہیں ائمہ کے، ہم سب جو ہے اس کی تشریح کرو نا، کیوں کرتے ہیں، خبر ہے آپ کو؟ یہ حدیث کی تشریح کرو آپ، جیسے علامہ اسید الحق بدایونی نے کی ہے۔ ایک منٹ سنیے، اس کی بھی تشریح کرو، کیا مطلب ہے؟ سکون سے بات کیجیے، سنیے نا، دیوبندی ہیں، ندوی ہیں، سکون سے بات کیجیے، سکون سے بات کیجیے۔ فرماؤ۔ یہ جو حدیث شریف ہے کہ جس نے قصدن جو ہے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، کیا اس کے مطابق جو ہے نا آپ حکم نافذ کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کا کیا اجماع ہے اس کے اوپر؟ نہیں، میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو قصدن نماز نہ پڑھے ہے کہ نہیں، نماز چھوڑ دے تو کیا اس نے کفر کیا؟ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں صحابہ کرام میں کیا لکھا ہے، جب تک آپ نہیں سنیے نا پہلے بات کو، وہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا،
हाँ करें। मेरे सवाल का जनाब जवाब दीजिए। आप करते रहे। हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझ कर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, बस। हुजूर ने फरमाया ना, बस। तो इस हदीस के मुताबिक आपका क्या ख्याल है, आप क्या करना चाहते हैं? जिसने एक नमाज, इमाम शाफई के नजदीक वो काफिर है, इमाम अहमद हम्बल के नजदीक काफिर है। बोलो है कि नहीं काफिर बेनमाजी? आप हनफी हैं कि क्या हैं आप हमको ये बताएं। मैं तो हनफी भी हूँ, और जो जिसका मसला जो कुरान हदीस के मुताबिक उसको पहले मानते हैं। हनफी हैं आप? हनफी। तो आपके मुताबिक जो है इस हदीस के जो है ना कुफ्र हो जाएगा, इंसान काफिर हो जाएगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल के नजदीक। मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, आप हनफियत की बात कीजिए ना। नहीं तो इमाम अहमद इब्न हम्बल गलत थोड़ी है, वो गलत दूसरे मसाले की जो ना बात नहीं कीजिए, समझे ना। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल गलत थोड़ी है। नहीं गलत कौन कह रहा है उनको भाई? मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा मिस्र नजूम के हैं। हाँ। तुम उनमें जिनकी इत्तेबा करोगे, इख्तिदा करोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। है कि नहीं? अब कुछ लोग नाअंजान जो है ना, क्या कहा जाए उनको, मुगन्नज़ात जो है ना बकते रहते हैं। अच्छा, एक और हदीस है, सुनो। अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन क़ामहा अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया हदीसों को मैं जानता हूँ। सुनिए बात को, जिसने नमाज को छोड़ा हदमद्दीन, उसने दीन को ढा दिया। अब इस बारे में क्या तशरीह करोगे? भैया वो दीन को जो है ना ये कर रहा है ना, नुकसान पहुंचा रहा है, दीन को ढा दिया। अगर कोई शख्स, सुनिए बात को यहाँ पे, उमन तरका, जिसने नमाज को छोड़ा हदमद्दीन, उसने दीन को ढा दिया। हजरत अब बेनमाजियों को आप जन्नती बना रहा हो, जो अरब के 5 टाइम के नमाजी हैं उनको आप नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम से खारिज करार दे रहा हो। अरे भाई, अरब के जो लोग जो काबिज किए हैं, जो कब्जा किए हैं, जो काबिज हुए हैं, तो उनकी तारीख आपने कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना आपने? बात को यहाँ पे नहीं, मैं वो हदीस, वो मतलब बता रहा हूँ जो आप बता रहे थे ना, मंत्र का सलाता, इसका क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं, मैं अब आपको फाजिल मैं क्या पूछ रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ। तारीख़ कभी आपने पढ़ा है? तो देखिए वो पुरानी किताब में कोई शक नहीं। नहीं सुनिए ना, तो आगे सऊद नहीं, यहाँ सुनिए बात को। यहाँ पे आगे सऊद जो साहब ने भी उसके खिलाफ अभी जो सऊदी हुकूमत है, अभी जो हरमैन शरीफैन में है कि नहीं, जो सऊदियों आगे सऊद की जो हुकूमत है, तो उनकी हुकूमत का जो है पस मंजर क्या था? अरे उन लोगों ने किस तरह कब्जा किया पता है ना आपको? ये बताओ कितने सुन्नी सही अकीदा। क्या यजीदियों की हुकूमत नहीं रही? क्या बलवाइयों की हुकूमत नहीं रही? क्या करामतों की हुकूमत नहीं रही? क्या शिया की हुकूमत नहीं रही? तो क्या यजीदी सही है? तो क्या 1400 साल से नमाजी नहीं हो रही? क्या 1400 साल से नमाजी नहीं हो रही यजीद से लेकर अब तक? नहीं सुनिए ना, कहते हैं 300 साल शियाओं ने हुकूमत की, मैं क्या पूछता हूँ आपको, ने की, करमटों ने की, अभी ये नजदीक कर रहे तो क्या 1400 साल? जनाब मन सुनिए बात को, यहाँ सुनिए बात को। हाँ, मैंने आपको फर्स्ट में जो मैंने मिसाल जो पेश किया कि काफिर का है कि नहीं, जबीहा नहीं, ये मिस्र मुर्दार है, हराम है वो। हिदाया की ये जो है ना फिक़ही इबारत है, ये उसका मसला है। ईसाई को आप क्या मानते हैं जी? ईसाई को क्या मानते हैं, मुसलमान या काफिर? अभी जो अहले किताब से हैं, हाँ, अहले किताब को क्या मानते हो आप? सुनिए ना बात को, यहाँ पे क्या मानते हो? नहीं बताओ तो सही, क्या मानते हो? और जिन्होंने अपनी किताबों में कोई तहरीफ नहीं की है, है ना, तो वो तो ठीक है, मगर अभी के जो ईसाई हैं, यानी उनका ज़बिया तो खा सकते हैं ना, मगर कुरान में है। भाई हम क्या कह रहे हैं, तो सुनते नहीं वाले पढ़ रहा हूँ ना मैं। फोन रखिए आप, समझते नहीं है बात को। बात करने सुनिए ना, बात करने का तरीका ऊतुल किताबा हिल्लु लकुम, बात करने का तरीका आपके पास नहीं है। किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं आप, जो है वो मुद्दा से साबित नहीं कर पाते हैं। अहले किताब का कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जहाँ भागते हैं आप, और तुम्हारा खाना हिल्लुल लहुम, उनके लिए हलाल है। अरे कौन नहीं कह रहा कि जन किताबी का जो ज़बिया जायज नहीं है, उन्होंने अपनी किताब में तारीफ कर दिया है। अरे तो तारीफ उन्होंने किया ना, देवबंद वालों ने थोड़ी तारीफ की है। तो क्या देवबंद वालों ने गुस्ताखियां नहीं की है? अरब वालों ने क्या कुरान में तारीफ की है? देवबंदियों को क्या समझते हैं? अरब वालों ने क्या कुरान में तारीफ की है? क्या वो कुरान नहीं पढ़ते अरब के लोग? इमाम काबा क्या कुरान नहीं पढ़ता? सुनिए, यहाँ सुनिए, देवबंदियों को आप क्या समझते हैं? इमाम काबा क्या भजन पढ़ता है नमाज में? इमाम काबा, अभी इमाम काबा जो है ना आपका, साबिक इमाम काबा जिन्होंने जुआ खेल रहा है,
पता है आपको? तो मर तो वो से हटा तो दिया, निकाल तो दिया वहाँ से। जुआ खेलना, जुआ वो। अरे तो मंदिर इस्लाम में योगा हुआ, मंदिर इस्लाम में योगा हुआ, भी योगा हुआ, किसी मंदिर इस्लाम में हुआ तो उसका जो है बायकाट किया गया, तो फिर जो है ना तो हर जगह बायकाट हो किया जाता गया। है। और अशरफिया में आलिम आए थे, देवबंद के आलिम हकीमुद्दीन कासमी साहब तशरीफ लाए थे अशरफिया में। वही ना, अब आप कहिएगा कि हमारे सुनिए बात में कासमी साहब तशरीफ लाए थे, कलीमुद्दीन ने क्या कहा कि अशरफिया में काफिर आए, काफिर आए, काफिर आए। देवबंदियों को जो है ना आप क्या समझते हैं, हमको ये बताइए तो। देवबंद वाले भी मुसलमान है, नदवा वाले भी मुसलमान है, बरेली भी मुसलमान। हमको ये बताइए कि आप जो है पढ़ लो क्या हर एक को काफिर कहने का हुक्म है, हर एक को काफिर कहने का हुक्म है। आपने नहीं कैसे काफिर, आपने इस्तग़फ़ार पढ़ा? अच्छा ये सुनिए, आप जो है बंद करके काफिर कहने का हुक्म है कि आंखें बंद करो, काफिर कह दो कि अल्लामा भाई काफिर है, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी भी काफिर है, अल्लामा तारुफ क्या है? हमारा नाम है अतहर हुसैन कादरी। अतहर हुसैन कादरी, हाँ। कहाँ से हो गए आप? हम सिरोंज जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, भोपाल के पास। अच्छा अच्छा, भोपाल के पास से है ना? भोपाल में आपके 1200 मस्जिदों में मालूम है आपको? नहीं नहीं, सुनिए ना, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे। तो आप जो है ना, जैसे कि आप जो है ना किस खानका से मुंसलिक हैं आप? हमारा कादरिया भी है, मदारिया भी है, सिलसिला है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ भी जाते हैं, ख्वाजा करीम अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। भाई हम वो नहीं पूछ रहे हैं। आप किससे मुरीद हैं? हम हुजूर ताजुश शरिया नहीं रहमा से हैं। अच्छा, हुजूर ताजुश शरिया से। वो किसके खलीफा थे जी? वो किसके खलीफा थे? अब हमको तहकीक करनी पड़ेगी, किताब देखनी पड़ेगी। अच्छा, यानी आपको यही मालूम कि हमारे पीर किसके खलीफा थे? जी, हमको नहीं पता है। जो नहीं पता रहेगा हम कहेंगे हमको नहीं पता। इनकी जगह किसने संभाली आपके पीर की? जी, आपके पीर की जगह किसने संभाली? अभी अल्लामा अजद रजा खान साहब की वहाँ है। अच्छा, काजी क़ुज़ात से नहीं जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं। तो और उनके भाई भी तो भी जिंदा हैं जो आपके पीर हैं। उनके भाई साहब क्या नाम हो गया? अब्दुल मन्नान रजा खान। हाँ हाँ हाँ, अल्लामा अब्दुल मन्नान रजा खान, सब वो बाहयात हैं। अल्लामा कमर रजा खान तो वो तो चले गए, वो तो बकायदा हयात नहीं है। अच्छा, वो वहाँ के सज्जाद नशीन वो हैं हजरत मौलाना अब्दुल सुभान रजा साहब। जी जी जी। और उनके लड़के हैं हजरत मौलाना मुफ्ती आसन रजा खान साहब, जो बहुत अच्छे नेक आदमी है और बड़े। नहीं सुनिए ना हजरत, हाँ, आप जो है सही मिजाज मिनहाज के साथ तहकीक करें, है ना? नहीं, देवबंद वाले मुसलमान है, कुरान के हाफिज होते हैं, कारी होते हैं, आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, मुहद्दिस होते हैं। अरे भाई, कोई आलिम फाजिल शैतान से बड़ा कोई जो ना आलिम फाजिल था? तो यही बात, जब तुम फाजिल बरेलवी के इल्म की तारीफ करो तो हम कहते हैं कि शैतान से बड़े क्या आलिम था कोई यहाँ पर इस जमाने में? है क्या आप जो ना फाजिल बरेलवी को नहीं मानते हैं? लगे तो बराहीन कातिया की तरह से शैतान की तारीफ करते, फिर कहते बराहीन कातिया वाले ने ऐसा लिखा है, शैतान के बारे में। तुम बराहीन कातिया वालों की नकल कर रहे हो? आना हजरत की किताबों के अंदर अहमद की नकल कर रहे हो कि शैतान की तारीफ कर रहे हो? क्या हजरत आमा की किताबों के अंदर कुफरी इबारत हैं? तुम शैतान की तारीफ क्यों की तुमने बराहीन कातिया की तरह से? फिर बराहीन कातिया पे क्यों इल्जाम लगाते हो कि उन्होंने शैतान की तारीफ? इल्जाम का जो हक है वो मैं हक कहूँगा। तो शैतान की तारीफ क्यों कर रहे हो? तौबा करो शैतान की तारीफ करने से। मैं तौबा नहीं कर रहा हूँ, मैंने मिसाल पेश किया। शैतान की तारीफ की है कि शैतान बहुत बड़ा आलिम था, तारीफ की आपने, तौबा करो। जी जी जी, शैतान बहुत बड़ा आलिम था। अस्तगफिरुल्लाह, वो यानी शैतान की तारीफ करने में तुझे मजा आ रहा है? ये हाफिज अगर कोई कह देगा हजरत मौला शफी थानवी साहब बहुत बड़े आलिम थे तो उनकी तारीफ हजम नहीं हो रही है, और हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। वो आलिम थे अशरफ अली थानवी साहब, इसके निकाल कौन करा साहब? हाँ, ये मगर वो शैतानी आलिम थे, ठीक ना? उनके पास में शैतानी इल्म था। क्या वो कुरान हदीस बयान नहीं करते थे? कुरान हदीस बयान नहीं करते थे? वो बेइश्क मोहम्मद बुखारी को, कुरान हदीस की शैतानी में कह रहे हो तुम? वो बेइश्क मोहम्मद बुखारी को पढ़ाते थे, कुरान हदीस की तारीफ देते थे, उसको तू शैतानी इल्म बता रहा है? शर्म नहीं आती? बेइश्क मोहम्मद बुखारी को पढ़ाते थे, तेरे अंदर कौन सा इश्क रसूल है जो तेरा इमाम आज तक काबे में नहीं है, 90 साल से इमाम नहीं है, बरेली वालों का इमाम नहीं।